Hello, is I'm audible? Audible. Okay. Good morning, everyone. On behalf of Ports Authority of India and Indian Kayaking Canoeing Association, I, Kiran, your host, welcome you all to this online program of athlete coaching and education program for kayaking and athletes of intermediate level. Now, let's welcome our chief guest of the day. I feel extremely pleased to welcome our today's chief guest, Cindin John, nutritionist and COE, COE LFP. I welcome you, ma'am, and invite you for the few words. Thank you, thank you. Good morning, all. I am Cindin John, working as a nutritionist at SAI and COE LFP. Can you audible me? Yes, ma'am, you are audible. Okay. Today we all are gathered here to collect some knowledge regarding nutrition to achieve an excellent performance in our canoeing and kayaking. We all know nutrition is very important for each and every athlete. And for most important recommendation for the canoe kayaking athlete is that they need to track the amount of energy they are expending each day and make sure they are replacing this energy with a balanced diet of carbohydrate, protein, and fat. In canoe kayaking, athlete want to strictly follow three main areas, that is hydrate their body well and fueling and recovery foods. Hydration is very important and fueling their body and recovery. But in this off season, they want to focus in three main areas, that is what they eat, what you eat, and what type of food they are selecting, and how much you eat, and the when you eat. Like when you eat means the timing of food. So in this pandemic days, due to COVID-19, we can move together in a proper channel by collecting many ideas for the better beginning. So today my colleague Sujata Shetty will definitely give you valuable points regarding the proper nutrition. So today's topic is balanced diet for canoe kayaking, intermittent level athlete during off season. So wish you this day begins on a healthy way. Thank you, Khelo India, Indian Canoe Kayaking Federation, and Sai LNCP for this arranging this valuable session. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Now let's move forward to our to this session. It is information to all the three that today is our nutritionist. Nutrition all about nutrition. We will give you education. Today is no training. तो इसलिए प्लीज आप आराम से या नोटबुक लेके और अपना पेन कॉपी लेके बैठ सकते हैं. आज सिर्फ है मतलब टीचिंग वाला पार्ट है, आज कोई ट्रेनिंग नहीं है. तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप तैयार करके, आपको अगर कोई दिमाग में क्वेरी है या आप सुनने के बाद आपको कोई क्वेश्चन है तो आप बैठ सकते हैं. पूरा इंटरेक्शन सेशन है पूरा, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंटरेक्ट है पूरा. मैम है. Now let's welcome our today's speaker, and I humbly invite our today's speaker, Ms. Suchita Shetty, Assistant Nutritionist, SI NCR LRP, for the presentation. Welcome, ma'am. Now I hand over this session to you, ma'am. Thank you. Thanks, Kiran. Very good morning to one and all. आज का जो सेशन है तो हम बात करते हैं ऑफ ट्रेनिंग सीजन में क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए. ठीक है, तो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई वांट टू टेल यू इन द बिगिनिंग कि लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन. इस पीपीटी, कैन यू सी द पीपीटी?
Yes? Okay, just a second. It's not visible now. एथलीट्स को रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी मतलब लैंग्वेज में, पूरे हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। इन पंजाबी इज अवेलेबल, हम ट्रांसलेट कर देंगे, तो इसलिए 4 लैंग्वेज है, आप किसी में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। I'm just trying to share my screen. हो गया मैम? Yeah, I think screen. Just wait ma'am. It's not visible now. Yeah, 1 second. Is it visible now? Yes, Yes. yes ma'am. It's visible now. Now it's visible. Okay, okay. Yes. Yes, so the plan is जो भी स्लाइड्स है, मैं जितना जल्दी हो सके आई ट्राई टू फिनिश दैट। तो आप अपना एक बुक लेके रख सकते हैं। प्लीज नोट योर डाउट्स, आपके जो भी डाउट्स है, आपके जो भी क्वेश्चन है। सो लाइक किरण सेड, सो इट्स गोइंग टू बी अ इंटरेक्टिव सेशन, ठीक है। जब मैं एक बार फिनिश कर देती हूँ तो आई गो ऑन पिकिंग अप द क्वेश्चंस वन बाय वन, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है बैलेंस डाइट फॉर कैनोइंग एंड कायाकिंग इंटरमीडिएट लेवल एथलीट्स ड्यूरिंग ऑफ सीजन। तो सबसे पहले चीज ये है कि आपने सुना होगा कि पीरियडाइजेशन जो करते हैं, आपके जो ट्रेनिंग होता है, तो न्यूट्रिशन का भी होता है। जैसे न्यूट्रिशन होता है न्यूट्रिशन इज एक्चुअली स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन जो है वो न्यूट्रिशन का एक ब्रांच है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि हम सिर्फ एथलीट्स को ज्यादा ध्यान में रखते हुए डाइट प्लान को बनाते हैं। तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन जो है वो डील करता है एक एथलीट के जो फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स है और उनका जो परफॉर्मेंस पे है, और जो परफॉर्मेंस के बाद जो रिपेयरिंग और रिकवरी का पार्ट होता है, तो इन सब चीजों को नजर में रखते हुए डाइट प्लान को बनाते हैं। तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन बेसिकली उससे डील करता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला कि बहुत सारे रिसर्च भी किया हुआ है अब तक, तो उसके हिसाब से हम लोगों को मतलब बॉटम लाइन यही है कि फिजिकल एक्टिविटी जो है और जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा डाइटरी हैबिट्स पे डिपेंडेंट है। तो आप जो न्यूट्रिशन लेते हो या जो खाना खाते हो वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है आपके परफॉर्मेंस पे। तो इसीलिए स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस पे थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज हर एक एथलीट में होना चाहिए। और जितना आपको बेसिक नॉलेज है उतना आप अपने आप को अच्छा सा न्यूट्रिशन दे सकते हो, एंड परफॉर्मेंस वाइज इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ठीक है। तो मूविंग ऑन फर्दर, तो ये जो जैसे कि मैं साइकिल के बारे में बात कर रही थी, जैसे कि आपका जो ईयरली ट्रेनिंग पीरियड होता है वो
आप तो जानते ही होंगे कि वो डिवाइड क्या रहता है। जैसे कि ट्रेनिंग पीरियड होता है जहाँ पे आपका नॉर्मल रेगुलर ट्रेनिंग चलता है, और सेकेंड फेज जो है वो है आपका कॉम्पिटिटिव फेज। जैसे कि आपका अगर 1 महीने में या 2 महीने में आपका कॉम्पिटिशन है, तो उस टाइम का जो फेज रहता है वो उस टाइम में अलग ट्रेनिंग रहता है आपका। और एक होता है पोस्ट कॉम्पिटिटिव पीरियड, जहाँ पे आपको एक कुछ टाइम का रेस्ट दिया जाता है, तो बॉडी रिकवर होने के लिए वो बहुत ही सही वाला टाइम है। तो अभी तो एक्चुअली आइडियली इट्स नॉट द रेस्ट टाइम, लेकिन अभी आपको तो पता ही है ये जो पैंडेमिक जो चल रहा है उसके वजह से ट्रेनिंग सब रुका हुआ है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में। तो हम लोग इसको ऑफ ट्रेनिंग पीरियड कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हो भी रहा है ट्रेनिंग पीरियड तो बहुत ज्यादा इंटेंस वाला जो आपका रेगुलर ट्रेनिंग होता है ऐसा वाला सेशन तो नहीं हो रहा है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में। ठीक है, तो एक चीज है। और दूसरा चीज ये है कि इस जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि इस 3 फेज का अलग अलग न्यूट्रिशन प्लान होना चाहिए। ठीक है, जो ट्रेनिंग पीरियड का होता है वो अलग होता है, और कॉम्पिटिटिव पीरियड में बॉडी का रिक्वायरमेंट ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा डिमांड रहता है, उसको हम लोगों को फुलफिल करना होता है। और जैसे कि ट्रेनिंग ऑफ पीरियड होता है, ये बहुत ही सुटेबल पीरियड है आपके बॉडी कॉम्पोजिशन को ऑल्टर करने का। जैसे कि मान लो कि अगर आपका जो भी आप स्पोर्ट में हो, जैसे कैनो कायाक में है, आपका जो मसल मास होना चाहिए वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। अगर आपको उस पे काम करना है तो दिस इज अ वेरी आइडियल टाइम कि आप अपना मतलब बहुत ज्यादा ध्यान देके न्यूट्रिशन को अच्छे से बढ़ा के, मतलब न्यूट्रिशन प्लान बना के अच्छे से आप उसको कर सकते हो। एंड विदाउट अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट ऑफ द न्यूट्रिशन प्लान, तो क्या होता है कि अगर आप अभी इस पीरियड में ट्रेनिंग जब नहीं चल रहा है, अगर इस पीरियड में एनर्जी डिमांड्स थोड़ा कम रहता है कंपेयर टू द ट्रेनिंग पीरियड और कंपटीशन पीरियड। अगर आप लोग ध्यान से न्यूट्रिशन प्लान को नहीं बनाते हो और जो खा रहे हो उस पर अगर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके बॉडी में एडिपोस टिश्यूज जो बोलते हैं, एडिपोस टिश्यू क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा फैट्स अक्यूमुलेट होता है। बेसिकली एडिपोस टिश्यू में फैट अक्यूमुलेट होता है। तो अगर एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा इनटेक हो रहा है, तो तब क्या होता है कि ये टिश्यूज और सेल्स बढ़ते जाते हैं। तो उसके वजह से आपके बॉडी में मसल मास के जगह पे क्या आ जाता है, फैट आ जाता है, तो विच इज एक्चुअली नॉट गुड। जब आपका ये वाला सेशन खत्म होके जब आप नॉर्मल ट्रेनिंग पीरियड पे आते हो तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो इसीलिए आपको खाने के बारे में बहुत ध्यान रखना है। ये जो है आपका बहुत क्रूशियल पीरियड है और बहुत ही ज्यादा एडवांटेज वाला पीरियड भी है, जहाँ पे आप मैक्सिमम यूज कर सकते हो इस टाइम का। ठीक है, और ये जो जैसे मैं बोल रही थी नेगेटिव चेंजेस जो होता है इस पीरियड में, तो आपके फर्दर जो जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तब आपको प्रॉब्लम होने के चांसेस है। तो इसीलिए जितना ज्यादा आप अभी कंसर्न लेके अपना न्यूट्रिशन को सही करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। और ये जो मैंने गोल्स लिस्ट किए हैं, तो बेसिकली ट्रेनिंग ऑफ पीरियड में यही 4 गोल्स होंगे किसी भी एथलीट के। एक होगा मेंटेन कंपटीशन वेट एंड प्रिजर्व स्केलेटल मास। जो आपका स्केलेटल मास होता है उसको प्रिजर्व करना, और आप जिस वेट पे हो उसको मेंटेन करना। जैसे कि मान लो आपका हाइट के हिसाब से, आपके गेम के हिसाब से आपका बहुत आइडियल वेट है बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड, तो आपको वही मेंटेन करना है ना। और सेकंड चीज आता है इंक्रीज स्केलेटल मास। जैसे कि मैं बोल रही थी कुछ लोगों का अगर मसल मास थोड़ा कम है तो उसको बढ़ाने का एक गोल रहता है, नहीं तो कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि मसल मास सही है लेकिन जो बॉडी का फैट परसेंटेज है वो थोड़ा ज्यादा हो गया, तो उसको कम करने का गोल रहता है। लेकिन कुछ कुछ लोगों को दोनों रहता है, जैसे कि स्केलेटल मास भी बढ़ाना है और फैट भी कम करना है। और उसी तरह इंक्रीज स्केलेटल मास और इंक्रीज बॉडी फैट। कुछ लोगों में बहुत ही कम बॉडी फैट रहता है, तो विच इज ऑल्सो नॉट गुड। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि एक क्या बोलते हैं, एक नंबर रहता है, जैसे कि इतना इतना जो है उस पे आपको मेंटेन करना है, तो उससे अगर कम है तो वो भी प्रॉब्लम है। तो दीज आर द मेन गोल्स जनरली एक एथलीट का ट्रेनिंग ऑफ पीरियड में इन 4 चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। और जब मैं बोल रही हूँ कि बॉडी का फैट है, बॉडी का मसल मास है, तो आपको कैसे पता चलेगा, ये सब हम असेसमेंट कैसे करते हैं। तो एक है मेथड न्यूट्रिशनल स्टेटस और असेसमेंट का एक मेथड होता है, वो है ABCDE मेथड। ठीक है, तो ABCDE मेथड का क्या मतलब है, एक है एंथ्रोपोमेट्रिक्स, अब तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा एंथ्रोपोमेट्रिक्स का, और एक होता है बायोकेमिकल एनालिसिस, और तीसरा है क्लिनिकल असेसमेंट, और फोर्थ है डाइट हिस्ट्री,
और ई है इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, ई फॉर इकोनॉमिक स्टेटस। तो एंथ्रोपोमेट्रिक्स का क्या मतलब है, इसमें बेसिकली आपके हाइट, वेट और जो भी मतलब वेस्ट सर्कम्फरेंस और चेस्ट सर्कम्फरेंस, इसका मेजरमेंट लिया जाता है। इसमें हम लोग बॉडी फैट परसेंटेज, इन सब चीजों को मेजर करते हैं। और बॉडी फैट एनालाइजर भी होते हैं, अगर इनकेस अगर वो नहीं है तो जो फैट कैलिपर्स होता है वो यूज करते हैं बॉडी फैट परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसमें जो एंथ्रोपोमेट्रिक्स है ये बहुत बेसिक वाला चीज है, इसमें आपको बहुत सारा चीज पता चल जाएगा इससे कि आपका जो हाइट क्या है, हाइट के हिसाब से वेट कितना होना चाहिए, ये सारा चीज आपको इसमें आ जाएगा। और सेकेंड चीज है बायोकेमिकल एनालिसिस। तो इसमें आता है मेनली आपके ब्लड एनालिसिस, ब्लड हो गया या यूरिन हो गया, तो ये सब आता है बायोकेमिकल एनालिसिस में। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि अगर कोई भी क्लिनिकल कंडीशन हो या नॉट एग्जैक्टली क्लिनिकल कंडीशन, अगर कोई भी आप में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो तो इससे पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर विटामिन डी का डेफिशिएंसी है तो बहुत बार इनिशियल लेवल पे कोई सिम्टम्स नहीं दिखता है, ठीक है। अगर कैल्शियम डिफिशियंसी हो तो ये सारा चीज जो है मिनरल और विटामिन्स का जब हम करते हैं तो वो बायोकेमिकल एनालिसिस यूज करके करते हैं, ठीक है। और सेकंड और नेक्स्ट है क्लिनिकल असेसमेंट। तो क्लिनिकल असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि मैं बोल रही थी, जैसे फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज डिफिशिएंट विद आयरन, आयरन का अगर डेफिशिएंसी है बॉडी में, तो क्लिनिकल जो असेसमेंट करते हैं उससे बहुत आसान से पता चल जाता है। अगर कोई ये जो आयरन डिफिशिएंसी है तो उसको हम अनीमिया बोलते हैं उस कंडीशन को, जब आयरन डिफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो जाती है और हीमोग्लोबिन लेवल्स कम हो जाता है तो उसको एनीमिया बोलते हैं। तो ये मोस्टली फीमेल एथलीट्स में पाया जाता है। तो फीमेल एथलीट्स में अगर है तो ये क्लिनिकल कंडीशंस जो है मतलब क्लिनिकल साइंस और सिम्टम्स जो है बहुत ऑब्वियस रहता है। जैसे कि ब्रिटल नेल्स हो गया, या जो आई कलर होता है वो बहुत पेल होता है और स्किन कलर पेल हो जाता है। और एक कंडीशन है उसको हम पाइका बोलते हैं, जहाँ पे एक टेंडेंसी रहता है कुछ अजीब सी चीज को खाने का, जैसे कि मड, जब इस पे पानी पड़ता है तो वो खाने का मन करता है, या चॉक पीस को खाने का मन करता है। इस कंडीशन को हम पाइका बोलते हैं, वो सीवियर आयरन डिफिशियंसी होने की वजह से होता है। तो ये क्लिनिकल असेसमेंट जब करते हैं तो उसमें पता चल जाता है। और विटामिन डी डिफिशियंसी या कैल्शियम डिफिशियंसी है तो नी पेन होने के चांसेस रहते हैं। जब आप वर्कआउट करते हो, ट्रेनिंग करते हो तो इतना एफिशिएंटली नहीं कर पाते हो। तो ये जो क्लिनिकल असेसमेंट करने से ये सारी चीज पता चल जाता है। तो उससे पहले बायोकेमिकल और एंथ्रोपोमेट्रिक्स का करना बहुत जरूरी है। और फोर्थ वन है आपका डाइट हिस्ट्री। तो डाइट हिस्ट्री में क्या होता है कि डाइट हिस्ट्री कैसे लेते हैं हम, अगर इफ आई एम एन एथलीट, अगर मैं एथलीट हूँ तो मैं अगर एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाती हूँ तो सबसे पहले मुझे पहले वाला 3 चीज मेरे पास होना चाहिए। उसके बाद में जब जाती हूँ तो पहले वो क्या करते हैं, डाइट हिस्ट्री लेते हैं मेरा। जनरली डाइट हिस्ट्री हम लोग क्या करते हैं, 4 दिन से लेकर 7 दिन तक का लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कितने बजे उठी हूँ सुबह, और व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग आई हैड, ग्लास ऑफ वाटर लिया, लेमन वाटर लिया, या दूध पिया मैंने, या बनाना खाया, जो भी है। और 24 आवर्स तक, मतलब सुबह से लेके मेरा दिन कब खत्म हो रहा है और लास्ट मील मेरा क्या था, तो यहाँ तक का जो है वो हिस्ट्री मुझे देना पड़ता है न्यूट्रिशनिस्ट को। और वो लेते हैं 4 से लेके 7 दिन तक का ऐसे वाला हिस्ट्री। और क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी बायोकेमिकल एनालिसिस है, ब्लड रिपोर्ट्स है, और क्लिनिकल असेसमेंट है, और एंथ्रोपोमेट्रिक्स है। तो हम डाइट हिस्ट्री लेने के बाद क्या करते हैं, पूरा बैठ के कैलकुलेट करते हैं कि इतने इस पूरे दिन का क्या इनटेक है, टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज कितना है, प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, सारा कुछ करते हैं। और अगर मान लो कि बायोकेमिकल एनालिसिस जो ब्लड रिपोर्ट्स है उसमें कुछ कमी नजर आ गई, जैसे कि हीमोग्लोबिन कम आ गया या आयरन कम आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, उस माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी कैलकुलेशन करते हैं कि ये देखने के लिए कि ऑन एन एवरेज आपका 1 वीक में कितना इंटेक है, मतलब ऑन एन एवरेज आपका कैलोरी इंटेक कितना है, ऑन एन एवरेज आपका प्रोटीन इंटेक कितना है, और जो भी आपके प्रॉब्लम्स है जैसे कि आयरन है या जो भी डिफिशियंसी है तो उसका कितना है इंटेक। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, डाइट प्लान बनाते हैं। ये एक आइडियल वे ऑफ प्लानिंग द डाइट है, ठीक है। अगर आप ट्रेनिंग पीरियड में हो, ऑफ ट्रेनिंग हो, या कॉम्पिटिटिव पीरियड में हो, बेसिकली ये सारा जो मेथड है उसको यूज करना बहुत जरूरी है एक प्रॉपर प्लान बनाने के लिए, ठीक है। और लास्ट आता है इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक स्टेटस इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि डाइट प्लान बनाने में हेल्प होगा। मान लो फॉर एग्जांपल अगर कोई, आई एम श्योर कि बहुत सारे वेजिटेरियन एथलीट्स भी होंगे
या कुछ कुछ वेगन एथलीट्स भी होंगे। ये जो वेगन सिस्टम है आजकल बहुत ज्यादा स्टार्ट हुआ है। वेगन में क्या होता है कि एनिमल प्रोडक्ट्स बिल्कुल इंक्लूड नहीं करते डाइट में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक कि मिल्क और बटर, मिल्क प्रोडक्ट्स जो भी है वो भी इंक्लूड नहीं करते हैं, तो उसको हम वेगन सिस्टम बोलते हैं, वेगन डाइट बोलते हैं। तो इफ समबडी इज अ वेगन, अगर वो कोई आता है एथलीट मेरे पास और वो अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं उनको आलमंड मिल्क नहीं प्रिस्क्राइब कर सकती हूँ। जस्ट बिकॉज वो काउ मिल्क नहीं पी रहे तो मैं आलमंड मिल्क नहीं बोल सकती हूँ। तो अगर आलमंड मिल्क, क्योंकि आलमंड मिल्क बहुत एक्सपेंसिव होता है और रेगुलर बेसिस पे यूज करना किसी के लिए पॉसिबल, कुछ लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है शायद। तो मुझे तब इकोनॉमिक स्टेटस अगर मुझे पता है तो मैं उसके हिसाब से चेंजेस बना सकती हूँ। तो मैं बेस्ट ऑल्टरनेट ऑप्शन दे सकती हूँ, जैसे कि सोया मिल्क हो गया या कोकोनट मिल्क हो गया। तो ये इस चीज के लिए इकोनॉमिक स्टेटस का जानना थोड़ा बहुत जरूरी है। तो दिस इज द ABCDE मेथड। आई होप दैट आप लोगों को कुछ बेसिक आइडिया मिला होगा। ठीक है, जो भी अगर डाउट्स है तो आप प्लीज नोट करके रखिएगा, क्योंकि अभी मैं चैट बॉक्स नहीं देख रही हूँ। अभी अगर आप डाउट लिखते हैं तो शायद वो मिस हो जाएगा, तो वी विल कीप इट एट द एंड। तो जनरल न्यूट्रिशन कॉन्सेप्ट क्या है? अभी हम लोगों ने इतना सारा बात कर लिया बेसिक्स का। तो बेसिकली न्यूट्रिशन कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए एक एथलीट में? अगर आप एथलीट हो तो आपके लिए क्या चीजों को दिमाग में रखना जरूरी है? एक है, आपको सबसे पहले चीज ये है कि आपको ये जानना है कि आपके बॉडी का नीड क्या है। जैसे कि मैं बोल रही थी, आयरन डिफिशियंसी, कैल्शियम डिफिशियंसी, जो भी है। तो जो बाहर का आदमी है, जैसे कि न्यूट्रिशनिस्ट है या कोच है, उससे पहले आपको पता चल जाता है कि आपके बॉडी में क्या हो रहा है ना। तो आपको पहले वो जानने की जरूरत है कि आपका बॉडी एक्चुअल में क्या चाहता है। ठीक है, जो क्या नीड है, नेसेसिटी क्या है, नेसेसरी थिंग या न्यूट्रिएंट क्या है, और उसके बाद आपको कैटेगराइज करना है नीड्स को। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वेट लॉस करना है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको अपने खुद का न्यूट्रिशन प्लान बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपको कार्बोहाइड्रेट कितना लेना है, प्रोटीन कितना लेना है। तो द मेन आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन इज दैट ओनली, क्योंकि अभी आप लोग सेंटर से दूर हो, ज्यादा आपका मतलब कांटेक्ट नहीं है न्यूट्रिशनिस्ट से या जो भी है, आप सेंटर में नहीं हो, मतलब फुल फ्लेज आप लोगों का नहीं चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। तो यू शुड बी एबल टू डिसाइड कि आपको घर पे क्या खाना है, आपका प्लान कैसे बनाना है। और अगर आप एक ब्रेकफास्ट ले रहे हो या लंच ले रहे हो, तो उसमें कॉम्बिनेशन में खाना कैसे होना चाहिए, मतलब कार्बोहाइड्रेट का सोर्स उसमें क्या आना है, प्रोटीन का क्या आना है, और फैट अगर ले रहे हो तो किस टाइप का फैट ले रहे हो, है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो आपको पहले इस नीड्स को कैटेगराइज करना है और उस नीड्स को कैसे मीट करना है, मतलब उसको कैसे फुलफिल करना है, वो होता है आपके जैसे कि मैं बोल रही थी, फूड चॉइसेस। फूड चॉइसेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कि जस्ट बिकॉज अगर मैं बोलती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट आपको लेना है, इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट का जो भी सोर्स है आप ले सकते हो। तो उसमें मैटर करता है चॉइस। ठीक है, तो आपके लिए क्या है सही है, और आपका जो फिजिकल गोल है उसके लिए क्या सही है, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना होता है। और रीड लेबल्स क्या होता है, जैसे कि आप अभी घर पे हो, देखो जैसे मैं बोल रही थी कि आपका ट्रेनिंग पीरियड अलग है, कॉम्पिटिटिव पीरियड अलग है, ट्रेनिंग ऑफ पीरियड अलग है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत चांसेस होता है कि आप जो आपके बॉडी के लिए सही नहीं है उसको आप डाइट में ले रहे हो, तो उसका चांसेस बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि जब आप हॉस्टल में रहते हो या एक पर्टिकुलर स्केड्यूल फॉलो कर रहे हो, जैसे कि आपका स्टडीज चल रहा है उसके साथ साथ ट्रेनिंग चल रहा है, तो आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है ये देखने के लिए कि अनवांटेड चीजें खाने का या बिंज ईटिंग करने का या जो भी। तो उस टाइम में बहुत अवॉइड हो जाती है। लेकिन जब आप घर पे रहते हो तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, और स्पेशली अगर थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिल गया तो हम लोगों का ब्रेन कैसे काम करता है कि इट ऑलवेज थिंक्स अबाउट फूड, कि क्या खाना है, क्या खा सकता हूँ मैं या क्या खा सकती हूँ मैं। तो तब अगर आप कोई रेडी टू ईट वाला चीज यूज कर रहे हो घर पे, जैसे कि बाहर का जो भी होता है, बिस्किट्स होता है या प्रोटीन बार होता है या जो भी होता है, अगर ऐसे वाला चीज आप इंक्लूड कर रहे हो तो उसका जो पीछे न्यूट्रिशन लेबल होता है उसको पढ़ने का आप थोड़ा आदत डालेगा। क्योंकि उसमें क्या होता है कि
आपको बहुत सारी चीज उसमें से आपको पता चल जाती है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, उसमें प्रोटीन कितना है और कैसे टाइप का फैट यूज किया हुआ है। ये जो न्यूट्रिशन लेबल है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। शायद हम लोग इसके बारे में भी बात कर सकते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि ये बहुत ही लंबा सा टॉपिक है। इस पे आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लो कि इंग्रेडिएंट लिस्ट जो होता है उसके पीछे, जैसे कि जो भी बिस्किट है या बिस्किट का पैक है, चॉकलेट का पैक है, जो भी है, उसके पीछे लिखा रहेगा, न्यूट्रिशन लेबल करके लिखा रहेगा। और उसके नीचे अगर आप देखोगे तो इंग्रेडिएंट लिस्ट लिखा रहेगा। तो ऑलवेज मेक श्योर कि उसमें ज्यादा शुगर, एडेड शुगर नहीं रहे। और कोलेस्ट्रॉल या ट्रांस फैट करके लिखते हैं फैट के लिए, उसका भी ज्यादा परसेंटेज नहीं होना चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, ठीक है। तो आप इतना सब थोड़ा न्यूट्रिशन लेवल पढ़ के उसका आइटम का कंज्यूम करना ज्यादा बेटर है आपके लिए। और इवेल्युएट फूड्स, अगेन लाइक आई सेड कि आपको आपका पता है नीड्स कितना है और कितना खाना चाहिए। आपको हमेशा ध्यान में ये रखना है कि आप वो एक्सीड ना करें। अभी आते हैं हम पर्टिकुलर स्पोर्ट के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आज हम बात करें कनोइंग और कायाकिंग के बारे में। तो ये जो स्पोर्ट है आप बहुत अच्छे से जानते हो क्योंकि आप तो एथलीट्स हो। तो आई जस्ट वांट टू गिव अ बेसिक इंफॉर्मेशन ऑन दिस कि इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका अपर बॉडी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा मैटर करता है। टोटल बॉडी इज गुड, वो मैं वो नहीं बता रही हूँ, लेकिन अपर बॉडी का जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा मैटर करता है। जैसे कि आपका मसल्स हो गया, शोल्डर पार्ट हो गया, बैक हो गया, अब्डोमेन, जो अब्डोमेन का कोर एरिया है वो थोड़ा स्ट्रांग होना है आपको, क्योंकि आप बैठ के करते हो। और लेग में भी थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो अचीव ये फिजिक अचीव करने के लिए आपको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जैसे कि वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आपके ट्रेनिंग में होता है ना। तो इसके वजह से आपको क्या होता है कि आपको अपर बॉडी में स्ट्रेंथ आपको थोड़ा बढ़ाने रहते हैं। तो इसीलिए आपको फूड और फ्लूइड्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और अगर आप जो भी आपका चल रहा है तो उसको मतलब ट्रेनिंग पीरियड जो भी है उसको रिकवरी के लिए भी आपको काम करना है। और उसके बाद जो ऑफ सीजन है उसमें भी आपको ध्यान रखना है अपने फिजिक का, बॉडी का, ठीक है। जो जैसे कि मैं बोल रही थी, अगर आप बहुत ही सही वाला वेट आपका है बॉडी का, तो आपका मेन मोटो होगा इस सीजन में कि आप उस वेट को मेंटेन करें। अगर आपका बॉडी का फैट परसेंटेज थोड़ा बढ़ गया तो दिस इज द बेस्ट टाइम, तो आप अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मसल स्ट्रेंथ थोड़ा और ज्यादा होना है, अपर बॉडी का स्ट्रेंथ ज्यादा होना है, थोड़ा मसल बढ़ाने हैं, तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। तो आज जो भी न्यूट्रिशन का मैं एडवाइस दूंगी तो इट विल बी अ जनरल वन, क्योंकि अभी देखो जैसे कि एथलीट्स जो होते हैं उसका हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आपको 70 ग्राम्स प्रोटीन ही लेना है या 30 ग्राम्स फैट ही लेना है, क्योंकि हर एक का नीड अलग होता है, हर एक का फिजिक अलग होता है, हाइट अलग होता है, वेट अलग होता है, सारा चीज अलग होता है। तो उस हिसाब से हम लोग चेंजेस करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक बेसिक आइडिया दे सकती हूँ विच विल बी वेरी यूजफुल। आप घर बैठे बैठे अपना डाइट को प्लान कर सकते हो। तो लेट्स मूविंग ऑन। तो ये जो न्यूट्रिएंट है, अभी जो जब हम फूड की बात कर रहे हैं तो फूड में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना। फूड इज मेड अप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है? 6 क्लासिफिकेशन होते हैं बेसिकली मेजर क्लासिफिकेशन होता है वो 2 होता है। वो होता है, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है और दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। जैसे कि आप जानते हो मैक्रो का मतलब होता है लार्ज पोर्शन, ठीक है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है आपको थोड़ा ज्यादा अमाउंट में लेना होता है, मतलब आपके जो डाइट है उसका मेजर पार्ट जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट से आता है। और सेकंड चीज है माइक्रोन्यूट्रिएंट, और उसमें भी जो है वो माइक्रो, जैसे बोलते हैं माइक्रो मतलब छोटा अमाउंट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है उसको आपको लेना है थोड़े कम मात्रा में कंपेयर टू द मैक्रोन्यूट्रिएंट, मतलब उसका नीड जो होता है बॉडी के लिए वो थोड़ा कम रहता है कंपेयर टू मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या आता है आपका आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और माइक्रोन्यूट्रिएंट में आता है आपका विटामिन्स और मिनरल्स। और 6th जो क्लासिफिकेशन है आपका वो है वाटर। तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके डिहाइड्रेशन को सही करने के लिए, रिहाइड्रेशन के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम एक एक करके बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। मैं थोड़ा बेसिक आइडिया दूंगी कि ये एग्जैक्टली क्या होता है और कौन से फूड में होता है ये सारा, और आपको कैसे लेना है, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? ये जो एक कंपाउंड है इसमें, मतलब जो खाने में होता है,
इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होता है। अगर आप कहीं पे भी आपके डाइट प्लान में या कहीं पे भी किसी को बात करते हो या किसी को लिखते हुए देखते हो, अगर कोई लिखता है CHO तो उसका मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि इसमें है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। और ये कार्बोहाइड्रेट जो है, एक 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको 4 कैलोरीज देते हैं। और ये कैलोरी क्या होता है? कैलोरी बेसिकली जो हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, मतलब बॉडी में जब खाना या जो भी खाते हैं उससे जो एनर्जी आता है उसको हम लोग, ये कैलोरी जो है वो उसको रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, ठीक है। तो इट्स लाइक अ मेजरिंग थिंग, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होते हैं। और बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है बॉडी में। मतलब जो भी हमारे बॉडी में फंक्शन चल रहा है, अगर आप रेस्टिंग मोड पे भी हो तो लेकिन आपके बॉडी के अंदर कंटिन्यूअसली काम चल रहा है, जैसे कि आपका हार्ट काम कर रहा है, लंग्स काम कर रहा है, ऑर्गन्स काम कर रहा है, आपका ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग, ठीक है, 24/7 इट इज वर्किंग। तो आप रेस्ट में भी हो तो बॉडी के अंदर जो आपका ऑर्गन्स है उसको काम करने के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है। और ग्लूकोज का जो मेन सोर्स होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। जब आप कार्बोहाइड्रेट रिच वाला खाना खाते हो तो बॉडी में वो डाइजेस्ट होता है, उसके बाद वो ग्लूकोज होके कन्वर्ट होके बॉडी में रिलीज होता है और ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होता है आपके हर एक ऑर्गन में, ठीक है। तो दिस इज अबाउट कार्बोहाइड्रेट। वो किस किस फूड आइटम्स में होता है? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स आपके बहुत ज्यादा होंगे आपके सीरियल्स में। सीरियल्स क्या होता है आपका? सीरियल्स होता है जैसे कि राइस हो गया या व्हीट हो गया, या राइस और मिलेट्स, सीरियल्स और मिलेट्स इसमें होता है, राइस, रागी, व्हीट, ज्वार, बाजरा। तो इन सब चीज में मेनली आपको कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, अलग अलग टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इतना अगर जानते हो आप तो आपके लिए बहुत सही है। कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है? फ्रूट्स में होता है, वेजिटेबल्स में होता है, और मेन सोर्स होता है आपका सीरियल्स और ग्रेन्स और आपके जो मिलेट्स है उसमें। तो इन चीजों में ज्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन भी हम कैसे करते हैं? मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड करके करते हैं, क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूलर मतलब स्ट्रक्चर जो होता है उस बेसिस पे करते हैं। और अगर उसको सिंपल करना हो तो बस इतना जान लो कि कार्बोहाइड्रेट में सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसका स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है। सिंपल जो होता है जब आप खाते हो तो बहुत अच्छे से इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और बहुत जल्दी एनर्जी रिलीज हो जाता है। और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो थोड़ा टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में, थोड़ा डिले करता है और थोड़ा बहुत टाइम वो रहता है आपके पेट में, तो वो एनर्जी रिलीज करता है बहुत स्लोली। तो these are the main two differences between simple carbohydrate and complex carbohydrate. और आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है इस पीरियड में कि आप कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स है वो बहुत सोच समझ के चूज करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं बोल रही थी कि सीरियल्स में भी होता है, ग्रेन्स में होता है और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होता है। इस पीरियड में, इस सीजन में अगर आप अपने प्लेट में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के थ्रू लेते हैं और थोड़ा मात्रा में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के थ्रू लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है वेट को मेंटेन करने के लिए और वेट लॉस करने के लिए, ठीक है। अगर वेट भी बढ़ाना हो तो इसी पोर्शन को बढ़ाना है, लेकिन जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है उसका जो परसेंटेज होता है वो ज्यादा नहीं करना है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आपके एग्जांपल्स है नॉर्मल ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, या जो रिफाइंड फ्लावर होते हैं जैसे कि मैदा होता है, तो उसमें ज्यादा फाइबर नहीं रहता, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं रहता, वो बहुत सिंपल रहता है, खाने से बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है और बहुत जल्दी एनर्जी रिलीज करता है। तो इसीलिए आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा कम पोर्शन में लेना है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को आपको थोड़ा मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट सोर्स आपका आ रहा है वो ज्यादातर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, ठीक है। तो बॉटम लाइन क्या है इसका? इस पीरियड में आपको लेना है डेली इनटेक अप टू 3 to 4 ग्राम्स अगेन। तो ये जो मैं बोल रही हूँ डेली इनटेक का जो भी नंबर्स में बता रही हूँ आपको, दिस इज वेरी जेनेरिक है ये। जो एक एथलीट का जो फिजिक है और उनका जो फिजिकल नीड्स है उसके हिसाब से हम इसको चेंजेस करते हैं। लेकिन
मिनिमम तो इतना लेना ही लेना, इससे भी कम हम कार्बोहाइड्रेट को नहीं लेना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि 3 to 4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। फॉर एग्जांपल अगर किसी का बॉडी वेट है 70 किलोस, तो कितना हो गया 70 into 4, तो ऑलमोस्ट आपका आ जाता है 7 4 28 टू 80 ग्राम्स के आसपास, 280 to 300 ग्राम्स के आसपास आ जाता है डेली इनटेक। और ओवरऑल एनर्जी एक्सपेंडिचर तो हम लोग इतने पे क्यों सेट कर रहे हैं? जैसे कि आपका ट्रेनिंग पीरियड है या कॉम्पिटेटिव पीरियड है, तो दिस कैन गो अप टू 10 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। मतलब आपके जो एक्सपेंडिचर है उसके हिसाब से हम लोग सेट करते हैं नंबर्स को। तो आप अभी मिनिमम रखो 3 to 4 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट, ठीक है। और क्योंकि अभी ओवरऑल एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत कम है, क्योंकि अगर आपका जो भी कोचिंग सेशन चलता है तो आप उसमें एक 1 आवर का वर्कआउट कर रहे हो या 2 आवर्स का वर्कआउट कर रहे हो, तो वो नॉर्मल फिटनेस के लिए, जनरल फिटनेस के लिए है। जो जब आपके ट्रेनिंग पीरियड में आपका होता है उतना ज्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर अभी इस 1 or 2 आवर फिजिकल एक्टिविटी से नहीं होता है, तो इसीलिए आपका बॉडी का नीड्स भी कम ही रहेगा, तो उस हिसाब से आपको सेट करना है। और जैसे मैं बता रही थी फिजिकल गोल्स, जैसे कि आपको फैट कम करने हैं, वेट कम करने हैं, तो उस हिसाब से कार्बोहाइड्रेट को सेट करना है। लेकिन आप एक बात जरूर याद रखिएगा कि आपको कार्बोहाइड्रेट स्किप नहीं करना है, क्योंकि 130 ग्राम्स तो आपके, जैसे मैं बोल रही थी, इंटरनल ऑर्गन्स जो काम करता है, जैसे कि हार्ट, ब्रेन, लंग्स जो भी है, उसके लिए मिनिमम 130 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट चाहिए रहता है। तो इसीलिए उससे कम आपको नहीं जाना चाहिए, अनलेस आपका कोई मेडिकल कंडीशंस हो, आप कोई स्पेशल डाइट पे हो, तो किसी के गाइडेंस के अंडर आप कर रहे हो तो तब ठीक है, लेकिन उससे कम आपको जनरली नहीं लेना चाहिए, ठीक है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बहुत हाई वाला प्रोटीन डाइट लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं या कंप्लीटली एलिमिनेट कर देते हैं अपने डाइट से, तो विच इज नॉट गुड। और सेकेंड इंपॉर्टेंट जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है हमारा, वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। जैसे कि मैं बोल रही थी कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज, जैसे हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट का जो स्मॉलर पार्ट होता है, तो प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। अगर कहीं पे भी आपको टर्म सुनाई देता है अमाइनो एसिड्स, तो आप जान लो कि वो प्रोटीन की बात हो रही है, ठीक है। तो प्रोटीन को जनरली अमाइनो एसिड्स करके बोलते हैं। तो इसमें भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है। और अमाइनो एसिड्स में अगेन हम लोग क्लासिफाई करते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एज द नेम सजेस्ट, एसेंशियल जो होता है वो बॉडी प्रिपेयर नहीं कर पाती है, तो आपको बाहर फूड के थ्रू लेना होता है। और जो नॉन एसेंशियल है वो इतना जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी खुद प्रिपेयर कर सकता है थोड़ा बहुत मात्रा में, अगर आप डाइट के थ्रू ले रहे हो तो विच इज मोर देन इनफ फॉर यू, ठीक है। जो नॉन एसेंशियल है उस पे हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो मैं आगे एक स्लाइड में मैं आपको दिखाती हूँ कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन सा होता है। बेसिकली 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, तो वो आपको बहुत आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आपके डाइट जो खा रहे हो तो उसमें वो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हो, ठीक है। और जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, ऐसे ही प्रोटीन में भी 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन से आपको 4 कैलोरीज मिलते हैं, ओके। और प्रोटीन का सोर्स क्या है, आप लोग तो जानते ही होंगे। वेजिटेरियन सोर्स अलग होता है, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस अलग होता है। जो नॉन वेजिटेरियंस है उनके लिए एक बेनिफिट है, क्योंकि वो वेज खाना भी खा सकते हैं, नॉन वेज खाना भी खा सकते हैं। जो वेजिटेरियंस है उनको थोड़ा बहुत प्लानिंग करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है वो मीट करना बहुत मुश्किल का काम होता है, अगर आप जो अपने खाने का ध्यान नहीं रख रहे हो। तो बहुत बार ऐसा लगता है कि हम बहुत सफिशिएंट अमाउंट में खाना ले रहे हैं, लेकिन उसमें मेनली इंग्रेडिएंट क्या आ रहा है वो हम लोगों को पता नहीं रहता। इसीलिए प्रोटीन का सोर्सेस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वेजिटेरियन में आपका है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में अच्छा प्रोटीन होता है, सोया में होता है, और जो भी आपके लेंटिल्स है, दाल्स है और बीन्स है, इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। और नॉन वेजिटेरियन की बात करते हैं तो आप तो जानते ही होंगे, चिकन हो गया, मीट हो गया, पाउल्ट्री, फिश, तो इसमें एग्स, तो इसमें अच्छा खासा प्रोटीन आता है, एनिमल प्रोटीन। और मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगी कि एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन का क्वालिटी के बारे में बताऊंगी। जब हम बात करते हैं प्रोटीन की, तो क्वालिटी ऑफ द प्रोटीन बहुत ही ज्यादा मैटर करता है।
तो वो क्यों है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी आपको। और प्रोटीन इनटेक, ये नंबर भी फिक्स्ड नहीं है, ये डिपेंड करता है अगेन ऑन बेस्ड ऑन योर बॉडी नीड्स। आपके बॉडी का अब्जॉर्प्शन रेट कैसा है और आपका जो फिजिकल एक्टिविटी लेवल कैसा है, आपका हाइट कितना है, वेट कितना है, उस हिसाब से डिपेंड करता है। तो मिनिमम हम लोग स्टार्ट करते हैं 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से। अभी ऑफ सीजन चल रहा है आपका, तो अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है तो 0.8 इज द मिनिमम ग्राम पर केजी बॉडी वेट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 70 किलो है तो 0.8 इंटू 70 होता है आपका प्रोटीन इनटेक, होना चाहिए प्रोटीन इनटेक। अगर मान लो कि आपका थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी है तो 1.2 से लेके 1.5 तक भी जा सकते हैं, और 2.3 तो तब आएगा जब आपका अच्छा खासा नॉर्मल फुल फ्लेज जब आपका ट्रेनिंग चलेगा। तो आप अभी के लिए इस सेशन, इस टाइम के लिए आप 0.8 टू 1.2 के बीच में रख सकते हो अपना प्रोटीन इनटेक। जब मैं बोल रही हूँ तो दैट हैज टू बी मल्टीप्लाइड विथ योर करेंट बॉडी वेट, ठीक है। आपका जो बॉडी वेट है अभी उससे आपको मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को, तो वो हो जाता है आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अगर आपका रेगुलर बेसिस पे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग चल रहा है, वेट ट्रेनिंग चल रहा है, और एक फुल फ्लेज प्लान्ड वाला अगर एक्टिविटी चल रहा है, फिजिकल एक्टिविटी चल रहा है, तो उस हिसाब से आपको प्रोटीन लेना चाहिए। तो बहुत ज्यादा प्रोटीन लेने से भी क्या होता है कि अगर इतना बॉडी यूज नहीं कर रहा है तो जनरली क्या करता है बॉडी, उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज या जो भी, और उसको मतलब फैट होके कन्वर्ट हो जाता है और फैट होके स्टोर हो जाता है बॉडी में। तो बहुत ज्यादा भी नहीं लेना है, जरूरत से ज्यादा नहीं लेना है। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ बहुत अच्छे से कि आप अपना नीड्स को जानो पहले, उसके हिसाब से आप अपना इनटेक को बदलो। और ये एक इम्पॉर्टेंट सा स्लाइड है आपके लिए। आप बहुत ज्यादा इसमें मतलब चीजें हैं तो इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये मैंने 2 यहाँ पे डाले हुए, एक लिस्ट है यहाँ पे है, ऊपर आप दे सकते हो प्रोटीन टाइप में कुछ एग्जाम्पल्स है एनिमल सोर्स का, मतलब जो नॉन वेजिटेरियंस है तो उनके लिए है वो, मतलब उनका फूड सोर्सेस है। और नीचे जो आप देख सकते हो बहुत लंबा लिस्ट है, वो है वेजिटेरियन सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और जो नेक्स्ट है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है। जैसे मैं बोल रही थी कि हर एक का फूड का डाइजेस्टेबल रेट जो होता है बॉडी में वो अलग होता है। जैसे कि मान लो अगर मैं 100 ग्राम्स प्रोटीन ले रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि 100 का पूरा 100 बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाएगा या डाइजेस्ट हो जाएगा। तो बॉडी का जो अब्जॉर्प्शन रेट होता है वो डिपेंड करता है, हर एक इंसान में वो अलग रहता है। प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी मतलब डाइजेशन जो होता है वो कैपेसिटी कितना होता है वो इस लिस्ट में दिया गया है, तो इसको हम इतना ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। और बायोलॉजिकल वैल्यू जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये जानना है। जैसे कि मैं बोल रही थी बायोलॉजिकल वैल्यू मतलब जो भी आप खा रहे हो उसमें से कितना परसेंटेज आपके बॉडी के लिए अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 100 ग्राम्स खा रही हूँ तो उसमें से कितना बॉडी के लिए अवेलेबल है, क्योंकि उसमें वेस्टेज भी होता है और उसमें कितना मेरे बॉडी को मिल रहा है वो ज्यादा मैटर करता है, तो उसको हम बायोलॉजिकल वैल्यू में बोलते हैं। और पीडीसीएएस का मतलब होता है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर होता है। तो इसमें आप ज्यादा डीप में जाने की जरूरत है, बस ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन को कंपेयर करने के लिए। आप इसमें देख सकते हो बायोलॉजिकल वैल्यू जो है वो एनिमल प्रोटीन में थोड़ा ज्यादा देखने को आपको मिल रहा है। स्पेशली एग का अगर आप देख रहे हो तो बायोलॉजिकल वैल्यू है 100, ओके, और नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन है 94। मतलब ऑलमोस्ट जो आप जब एग कंज्यूम करते हो उसका जो प्रोटीन होता है वो मैक्सिमम अमाउंट बॉडी को मिलता है, उसका मतलब ये है, ठीक है। अगर आप प्लांट सोर्सेस में देख सकते हो तो उसमें सिर्फ आपको मिलेगा सोया प्रोटीन आइसोलेट, सोया का जो आइसोलेटेड प्रोटीन है उसमें थोड़ा बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल वैल्यू है कंपेयर टू एनी अदर प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो इसीलिए आपको ये जानने की बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सबको नॉन वेजिटेरियन बनना है, जो भी वेजिटेरियन है उसको सिर्फ एनिमल प्रोटीन खाना है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। इसमें क्या होता है कि एनिमल प्रोटीन और वेजिटेबल प्रोटीन का एक जो क्या चीज मिसिंग है कि प्लांट प्रोटीन में जो मैं 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की बात कर रही थी जो बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी है वो मिसिंग रहता है।
ठीक है, प्लांट प्रोटीन में। तो इसीलिए अगर आप वेजिटेरियन हो, आप बहुत ज्यादा प्लांट प्रोटीन अगर यूज करते हो, तो आपको एक काम करना है कि आपको कॉम्बिनेशन में लेना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि अगर आप सोया लेते हो या चिकपी जैसे कि चना हो गया, काबुली चना जो बोलते हैं या ब्लैक चना जो बोलते हैं, अगर वो आप कंज्यूम कर रहे हो, तो शायद उसमें एक दो चीजें मिसिंग हो सकती है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, तो उसमें आपका ल्यूसिन है, लाइसिन है, मिथ्योनिन है। तो ये जो है प्रोटीन का एक कंटेंट है, ठीक है, अमाइनो एसिड है। तो वो शायद चना में एक या दो चीज मिसिंग रह सकता है, और सोया में शायद वो हो सकता है। तो इसीलिए आप जब आप कॉम्बिनेशन में लेते हो, जैसे कि आप लंच में बना रहे हो सोया के साथ चने की सब्जी, तो क्या होता है कि वो जो मिसिंग पार्ट है वो कॉम्पनसेट हो जाता है। तो स्पेशली जब अगर आप प्लांट वेजिटेरियन हो, तो अगर प्लांट प्रोटीन ज्यादा यूज कर रहे हो, तो हमेशा आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको हमेशा कॉम्बिनेशन में लेना है। जैसे कि ग्रीन पीस हो गया, उसमें अच्छा खासा प्रोटीन होता है, सोया हो गया, उसमें अच्छा खासा प्रोटीन होता है। जब आप कॉम्बिनेशन में लेते हो, तो जो मिसिंग है तो वो दूसरा कॉम्पनसेट कर देता है। लेकिन एनिमल प्रोटीन का एक एडवांटेज है, मोस्ट ऑफ द एनिमल प्रोटीन्स जो सोर्सेस है, जैसे कि मीट हो गया, एग हो गया, तो उसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो है वो जनरली होता है, 9 के 9 जनरली होता है। और जो मतलब एक में नहीं है दूसरे में है, वो ऐसा वाला चीज थोड़ा कम है कंपेयर टू प्लांट। तो इसीलिए आपको अगर वेजिटेरियन हो तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है। एक जो ग्राफ है ये बस एक एग्जाम्पल है आपको बताने के लिए कि वर्ल्ड वाइड में कितना प्लांट प्रोटीन कंज्यूम हो रहा है और एनिमल प्रोटीन कंज्यूम हो रहा है। आप जो लाइट शेड देख रहे हो वो है प्लांट प्रोटीन इनटेक, और जो डार्क शेड देख रहे हो वो है एनिमल प्रोटीन इनटेक। तो आप वर्ल्ड वाइड अगर देखते हो तो वेजिटेरियंस ही ज्यादा है नॉन वेजिटेरियन को कंपेयर करते हुए। लेकिन कुछ कंट्रीज है जैसे कि अमेरिका है या यूरोप है, यूरोपियन कंट्रीज में एनिमल प्रोटीन का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और प्लांट प्रोटीन का कम। जैसे कि हमारा एशिया में आता है, तो उसमें आप देख सकते हो कि एनिमल प्रोटीन ऑलमोस्ट हाफ है कंजम्पशन, प्लांट प्रोटीन ही ज्यादा है। उसका मतलब होता है कि मतलब वेजिटेरियन ज्यादा है। तो इसमें आपको आइडिया मिल जाएगा, ये देख लीजिए आप। तो ये जो साइड में दिया गया है वो सब आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, मैं इसी के बारे में बात कर रही थी। ये एक आपको क्लियर आइडिया देगा। प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, एनिमल बेस्ड प्रोटीन है, एक कंपैरिजन स्टडी है, एक रिसर्च से लिया है मैंने। तो रिसर्च स्टडी से लिया है मैंने। तो आप इसमें नंबर्स चेक कर सकते हो। ये जो भी है साइड में है वो आपके बॉडी नहीं बना सकता। ये जो प्रोटीन है साइड में लिस्ट किया है हमने, ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, आपके बॉडी में वो प्रोड्यूस नहीं होता है, इसीलिए आपको डाइट के थ्रू लेना बहुत जरूरी है। तो अगर बोलते हैं, अगर आपको कहीं पे सुनने में और फैट जो है वो भी एनर्जी सोर्स में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप लो इंटेंसिटी वर्कआउट्स करते हो या बहुत हाई इंटेंसिटी नहीं है या थोड़ा बहुत कार्डियो कर रहे हो, तो उसमें थोड़ा बहुत फैट आपका यूटिलाइज होता है बॉडी में एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज है जैसे कि हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, और जब वेदर सीजन चेंज होता है तो कैसे हम ह्यूमंस उसको मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि समर में आपको हम लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, और विंटर या रेनी सीजन में हम लोग अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज देर इज अ लेयर ऑफ फैट इनसाइड योर स्किन। ठीक है, तो उस हिसाब से फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत ज्यादा फैट को एलिमिनेट करना भी सही चीज नहीं है। लेकिन अगेन लाइक आई सेड, फैट को भी हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट।
सैचुरेटेड फैट का परसेंटेज जो है वो थोड़ा कम रखना है आपको। अनसैचुरेटेड फैट को हम गुड फैट्स बोलते हैं जनरली। तो उसमें आपका आता है मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड। मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, बस इतना समझ लो कि अनसैचुरेटेड फैट जो है वो थोड़ा अच्छा होता है, और सैचुरेटेड फैट जो होता है वो थोड़ा बॉडी के लिए इतना अच्छा नहीं है, मतलब उससे हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं, ठीक है। जो भी फैट वाला फूड आइटम आप अगर आप लेते हो, फॉर एग्जांपल बहुत फ्रीक्वेंटली बहुत लोग मुझे ये पूछते हैं क्वेश्चन कि फैट में, जब फैट की बात होती है तो एवरीवन हैज वन क्वेश्चन कि कौन सा कुकिंग ऑयल यूज करना है ना। तो जब हम बात करते हैं फैट्स की, तो जो भी आप फैट वाला खाना खाते हो तो सिर्फ इसमें सिर्फ एक टाइप का फैट नहीं होता है, तो इट्स ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड्स। तो उसमें सैचुरेटेड फैट भी इतना थोड़ा बहुत परसेंटेज होता है, अनसैचुरेटेड फैट भी इतना थोड़ा बहुत परसेंटेज होता है। तो आपको ये देखना है कि अनसैचुरेटेड फैट जिसमें ज्यादा हो और सैचुरेटेड फैट कम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कुकिंग ऑयल की, तो ऑलिव ऑयल अगर आप लेते हो या ग्राउंडनट ऑयल, तो उसमें सैचुरेटेड फैट भी है और अनसैचुरेटेड भी है। तो लेकिन जो गुड फैट्स होता है उसमें है। और कोकोनट ऑयल की बात करते हैं तो उसमें जो है एमसीटी होता है या म्यूफा जो होता है, मतलब जो अच्छा गुड फैट जो बोल रहे हैं वो भी है, और जो बैड फैट है वो भी है। तो इसीलिए सबसे बेस्ट ये होता है कि आप थोड़ा मॉडरेट अमाउंट में, मतलब सोच समझ के यूज करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। और जब भी आपको मौका मिल रहा है फैट खाने का या कुकिंग में यूज करने का, तो थोड़ा सोच समझ के अच्छा क्वालिटी वाला यूज कीजिए, सो दैट कि उससे जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो कम रहे, ठीक है। इसका भी हम लोग नंबर्स फिक्स नहीं कर सकते, मैं इतना नहीं बोल सकती हूँ कि हर किसी को 30 ग्राम्स लेना है या 50 ग्राम्स लेना है। ये जाता है अगेन ऑन योर बॉडी टाइप, जेंडर, एज, ये सब चीज को हम ध्यान में रख के, और आपका फिजिकल एक्टिविटी लेवल, मतलब ज्यादा क्या आपका हो रहा है, मतलब कार्डियो आपका ज्यादा है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ज्यादा है, तो उसके हिसाब से हम लोग फैट को सेट करते हैं। जनरली हम लोग 20 to 30% ऑफ टोटल इनटेक बोलते हैं। जैसे कि अगर आप 2000 कैलोरी डाइट पे हो तो उसका 30% जो है वो फैट के थ्रू आना चाहिए। अगेन फैट जब मैं बोलती हूँ तो गुड फैट्स के थ्रू आना है। और फैट्स का एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया आपको, मीट है, डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स, सीड्स, ऑलिव्स, एवोकाडोस। एवोकाडो मतलब जो बटर फ्रूट बोलते हैं ना, उसमें अच्छा खासा, तो दैट इज द ओनली फ्रूट विच हैज फैट इन इट, ठीक है। कोई और फ्रूट्स में फैट्स नहीं होते हैं, जनरली विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और प्रोटीन भी बहुत कम अमाउंट में होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। लेकिन एक एवोकाडो एक ऐसा फ्रूट है जिसमें आपको अच्छा खासा आपको विटामिन्स मिलता है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मिनरल्स के। मिनरल्स अगेन एग्जांपल्स में क्या है, आपका सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ठीक है। ये सब आपके मिनरल्स में आते हैं। आयरन है, जिंक है, कॉपर, सेलेनियम, आयोडीन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, ये सब है आपके मिनरल्स में आते हैं कैटेगरी में। और मिनरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जैसे मैं बता रही थी मिनरल्स और विटामिन जो है वो इंटर रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर बॉडी में आयरन अब्जॉर्प्शन होना है तो उसके लिए विटामिन सी की जरूरत होती है। जैसे कि विटामिन डी का अब्जॉर्प्शन होना है उसके लिए कैल्शियम जरूरत होती है। कैल्शियम इज अ मिनरल, विटामिन डी इज अ विटामिन। तो इसीलिए आपका विटामिन और मिनरल्स जो है, इवन दो वो कम प्रमाण में चाहिए, लेकिन वो बॉडी के लिए चाहिए। उसका डिफिशियंसी होने से बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं। और मिनरल्स भी आपको सेम नट्स, बीन्स और मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलेगा। तो हम बात करते हैं वाटर की। ये जो आपका सीजन है, मतलब ऑफ सीजन, ऑफ ट्रेनिंग का जो सीजन है, ये एक बहुत ही बेस्ट सीजन है आपके जो भी डिहाइड्रेशन बॉडी में है उसको सही करने के लिए। आप
थोड़ा ध्यान रखिए आपका वाटर इनटेक का। वाटर मतलब प्योरली सिर्फ पानी ही नहीं होना है, कुछ भी हो सकता है, नारियल पानी आप पी सकते हो, और जो जूसी फ्रूट्स होता है उसको खाने से उसमें भी थोड़ा बहुत वाटर कंटेंट आ जाता है। जैसे कि अभी तो वाटरमेलन का चल रहा था थोड़े टाइम पहले समर सीजन में, तो वो बहुत जूसी फ्रूट है। फिर ऑरेंजेस थे, फिर अभी तो स्वीट लाइम आ रहा है सीजन में, तो अभी ये भी अच्छा है आपके लिए। और पोमोग्रेनेट है, उसमें भी थोड़ा वाटर कंटेंट होता है। तो जो वाटर कंटेंट वाला फ्रूट्स होता है, जैसे कि वेजिटेबल्स है, थोड़ा बहुत जिसमें वाटर कंटेंट होता है, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए। और जब भी आप थर्स्टी फील करते हो तुरंत पानी पी लीजिएगा, 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर यू कैन मेंटेन। अभी तो आपको ट्रेनिंग जैसा जितना रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहता, या कॉम्पिटिटिव पीरियड में आपको सोच समझ के पानी लेना होता है, क्योंकि नहीं तो बॉडी वेट वाटर वेट आ जाता है। लेकिन अभी ऑफ पीरियड में वो ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, तो उस हिसाब से आपको पानी का इंटेक सेट करना है। और बहुत ही सिंपल सा एक चीज है, कैसे आपको असेस करना है कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है कि नहीं। जस्ट विथ वेरी सिंपल थिंग है, आपको यूरिन कलर चेक करना है। जब आप यूरिन पास करते हो तो अगर वो बहुत डार्क कलर है तो आप समझ लो कि डिहाइड्रेशन हुआ है बॉडी में। अगर वो थोड़ा बहुत लाइट कलर है तो आपका जो हाइड्रेशन स्टेटस है बॉडी का वो सही है। तो ये हो गया न्यूट्रिएंट्स की बात। अब हम बात करते हैं वेट लॉस की। ये बहुत ही होता है, ये अनवांटेड स्नैक्स की वजह से होता है। या आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, जैसे कि पढ़ाई कर रहे हो या टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, तो क्या करते हो कि अनवांटेड जो जंक होता है वो खाने का मन करता है। तो इसीलिए आपको थोड़ा बहुत कॉन्शियस होकर रहना है, क्योंकि यू आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन, यू आर एन एथलीट। तो आपको हमेशा ध्यान में ये रखना है, क्योंकि जब ये सब खत्म हो जाता है तो आपको अल्टीमेटली जाना है वापस ट्रेनिंग पीरियड में। अगर अननेसेसरी वेट लेके जाओगे तो आपका वहां पे सिर्फ अगेन 1 मंथ या 2 मंथ वेस्ट होगा वेट को रिड्यूस करने में। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। और क्वालिटेटिव ईटर, जैसे कि मैं बात कर रही थी क्वालिटी की, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या जो भी फैट है आपका, जो न्यूट्रिएंट्स है, तो वो क्वालिटी होना चाहिए। जैसे कि मैं बोल रही थी कि फॉर एग्जांपल एग्स हैज अ बेटर क्वालिटी प्रोटीन कंपेयर टू समथिंग एल्स। तो आपको अगर स्नैक्स में लेना है तो आप एक ऑमलेट बना के खा सकते हो, या एग्स को आप बना के भुर्जी जैसा बना के आप ले सकते हो। तो वो उसके थ्रू क्या होता है कि बहुत ज्यादा कैलोरीज भी नहीं आ रही है, एट द सेम टाइम आपको अच्छा खासा क्वालिटी वाला प्रोटीन मिल रहा है। कंट्रोलिंग हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है, जैसे कि जब आप खाना खाते हो, फॉर एग्जांपल आपने ब्रेकफास्ट लिया है अभी, तो तुरंत क्या होता है, बॉडी में डाइजेशन होता है, वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट इसमें जितने भी होते हैं वो ग्लूकोज होके कन्वर्ट हो जाता है और वो ब्लड में रिलीज होता है। तो आपका ब्लड शुगर जो है वो बढ़ता है, तो उसको हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा गैप देते हो, जैसे कि मान लो 9 o'clock को आपने ब्रेकफास्ट किया है और 2-3 बजे तक आपने कुछ नहीं खाया है, तो क्या होता है कि बॉडी बहुत ज्यादा एनर्जी नीड्स में रहता है। तब क्या होता है कि आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो धीरे से ड्रॉप हो जाता है। उसको हम उस स्टेटस को हम हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। तो एथलीट्स के लिए, स्पेशली एथलीट्स के लिए हाइपरग्लाइसेमिया मतलब बहुत ज्यादा ऊपर जाना भी सही नहीं है, बहुत ज्यादा नीचे जाना भी सही नहीं है। तो इसीलिए आपको मेंटेन करना है कि आपका ब्लड शुगर लेवल्स बहुत नीचे ना जाए। तो इसीलिए बीच में स्नैकिंग, जो हेल्दी स्नैक्स होते हैं उसको लेने का आप थोड़ा हैबिट डालिएगा। और हाइपोग्लाइसेमिया का एक और डिसएडवांटेज क्या है, जब आप उस स्टेट में रहते हो, जब खाना दिखता है तो आपको पोर्शन पे कंट्रोल नहीं रहेगा। मतलब जो भी पॉसिबल चीज है आपके सामने, यू एंड अप ईटिंग ऑल ऑफ दैट। तो वो एक ध्यान में रखो। और प्रोटीन हैज हायर थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड क्या होता है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, जब हम खाना भी खाते हैं उसको प्रोसेस करने के लिए भी थोड़ा बहुत एनर्जी चाहिए होता है। तो इंटरनल ऑर्गन जब फंक्शन होता है उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होता है। तो जब आप प्रोटीन ज्यादा ले रहे हो खाने में, वो जब प्रोसेस होता है तो उसमें भी थोड़ा बहुत कैलोरी बर्न होता है बॉडी में। तो इसीलिए बहुत लोगों को वेट लॉस के लिए हाई प्रोटीन वाला डाइट यूज करते हैं।
तो वो एक एडवांटेज है प्रोटीन का। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सबको हाई प्रोटीन और लो कार्ब लो फैट का डाइट फॉलो करना है, लेकिन वो अगेन डिपेंड करता है आपके बॉडी टाइप पे, आपके ईटिंग हैबिट्स पे, लाइफस्टाइल पे। लेकिन प्रोटीन को थोड़ा बढ़ाने से एडवांटेज है और कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा कम और फैट को थोड़ा कम करने से ज्यादा एडवांटेज है इस पीरियड में। आप एक चीज ध्यान में रखिए, मैं जो भी एडवाइस दे रही हूँ, रिकमेंडेशंस दे रही हूँ, वो ट्रेनिंग ऑफ पीरियड पे है, ऑफ पीरियड के लिए है, ठीक है। और प्रोटीन की बात जब हम करते हैं तो लीन प्रोटीन के थ्रू कर सकते हैं, और कार्बोहाइड्रेट आप ले सकते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के थ्रू, और फैट्स जो है अगेन हेल्दी फैट्स, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर कार्बोहाइड्रेट इज नॉट द बैड गाय। कार्बोहाइड्रेट बुरा चीज नहीं है आपके बॉडी के लिए, लेकिन क्वालिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, आप किस फॉर्म में ले रहे हो, वो ज्यादा मैटर करता है। अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी का। तो इम्यूनिटी जो है वो बहुत ही, आई होप आई हैव टाइम, ठीक है। इम्यूनिटी जो है, आपका जो इम्यूनिटी जो है वो बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि अभी तो आपको पता ही है कि पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना चल रहा है, और वायरस का जो वो बाहर बहुत ज्यादा चल रहा है। अभी साथ साथ में डेंगू भी आ गया और थायराइड भी आ गया, तो वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा है बाहर। तो ये इम्यूनिटी क्या चीज होती है, आप तो बहुत सुने होंगे कि इम्यूनिटी के बारे में, इम्यूनिटी बढ़ाना है। जहां भी देख रहे हो, टीवी पे देख रहे हो, टीवी में एड्स दिखा रहे हैं कि ब्रांड का भी ले रहे हो, उसका प्राइसिंग का भी मैटर करता है, उसमें क्या या 9 ग्राम प्रोटीन आ रहे होते हैं, तो उसमें बाकी ज्यादा जो कैलोरीज है वो ज्यादा रहता है। तो वो डेफिनेटली आपको, आपकी जो प्रैक्टिस है या आपके डेली इनटेक है उस पे अफेक्ट करेगा ही करेगा। तो बहुत लोगों को फैट गेन भी हो जाता है, लेकिन वो सप्लीमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन द काइंड ऑफ सप्लीमेंट, द क्वालिटी ऑफ सप्लीमेंट पे मैटर करता है। तो सप्लीमेंट बुरा चीज नहीं है। अगर आपको प्रोटीन इनटेक बढ़ाना है तो आपको वे आइसोलेट मिलता है, तो अच्छे ब्रांड का वेट आइसोलेट लेने से वो आपके जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मैं बता रही थी, जो गैप है उसको फिल करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए प्लीज आपके कोचेस और आपके जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट है उनसे हाइड करके कोई भी सप्लीमेंट नहीं लीजिएगा। उनको एक बार दिखा के, उनसे एक बार परमिशन लेके, उनसे एक बार चेक करा के आप यूज करें तो आपके लिए ज्यादा बेटर है। कोई और क्वेश्चंस हैं? I think we have done. Abhi koi Anusha wants to ask any question, I think. Hello. Yes, Anusha, hello. Yes, Anusha. Hello, good morning, ma'am. Good morning, Anusha. मैम, ये सप्लीमेंट नहीं लेने से भी हमारे नेचुरल फूड से हमारा मसल स्ट्रेंथ ये सब इम्प्रूव कर सकते हैं क्या मैम? डेफिनेटली तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रही थी कि जो नेचुरल फूड है वो आपका सबसे पहला वाला प्रायोरिटी होना चाहिए। द फर्स्ट प्रायोरिटी हैज टू बी योर नेचुरल फूड्स। इसीलिए मैं आपको प्रोटीन का सोर्सेस बता रही थी, कार्बोहाइड्रेट का सोर्सेस बता रही थी, और फैट का सोर्सेस बता रही थी। तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा नेचुरल फूड्स होना है। लेकिन कुछ कुछ केसेस होते हैं, जैसे कि आपके फॉर एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव पीरियड में हो आप, तो आपको एक लिमिट रहता है कि इसके आगे आपको वेट नहीं बढ़ाना है ना, या वेट रिस्ट्रिक्शन होता है। तो या कुछ कुछ ऐसे स्पोर्ट्स भी है, जैसे कि रोइंग है, तो उसमें लाइट वेट कैटेगरी भी होता है ना। तो ऐसे जब रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जब आप कंपटीशन पीरियड के आसपास हो, या मतलब कुछ टाइम में है आपका, तो प्रिपेयर कर रहे हो, तो उस टाइम में अगर आपका रिक्वायरमेंट और डिमांड बहुत ज्यादा है और आपके लिए कुछ कुछ फूड रिस्ट्रिक्शंस भी है, तो उस टाइम में सप्लीमेंट बहुत काम आता है आपके लिए। वो जो गैप होता है उसको फिल करने के लिए, उस टाइम में न्यूट्रिशन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। लेकिन
नॉर्मल बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे जितना हो सके आप उतना नेचुरल फूड्स पे ध्यान दीजिएगा, बिकॉज लाइक आई सेड नेचुरल फूड जो होता है उसमें वाइड वेराइटी ऑफ रेंजेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उसके वो ज्यादा बेनिफिशियल है हेल्थ वाइज। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। किसी को और? I think we have done. There is no question. I think कोई और क्वेश्चन है? Anybody have any question, any feedback? किसी को कोई feedback, कोई suggestion चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं क्योंकि we still have time. Okay, ma'am. I think we have done. Okay. Okay. Thank you so much, ma'am, Thank you so for the. Okay, I Yes, was ma'am. just saying कि thank you so much. बहुत पेशेंस से सब लोगों ने सुना है and it was a very interactive session. I enjoyed it. और thanks a lot for the opportunity. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for sharing a valuable knowledge. Ma'am, शायद कोई आया है मुझे लग रहा है। Unhealthy habits contribute to obesity. है कोई? पता नहीं क्या, एक मिनट। Shivam Yadav again. Unhealthy eating habits have contributed to the obesity. About 1/3 of the adults in ये obese. शायद क्वेश्चन नहीं है ये, शायद कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है। By making smart food easier, help protect yourself from these health problems too. How पूछा होगा इसने, कैसे? कैसे? Yes, ma'am. How only, ma'am? How can we Okay. protect from that illness and Okay. How can we protect From the hypertension, diabetes, osteoporosis, certain type of cancers. हेल्थ डिसऑर्डर्स जो भी मेंशन किए हैं, इसको हम एक सेंटेंस या एक जनरल एडवाइस में तो उसको सम अप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक कंडीशन का अलग अलग रीजन होता है। लेकिन ओवरऑल अगर बात किया जाए तो इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर अ एथलीट या नॉर्मल पर्सन या जिनका लोअर फिजिकल एक्टिविटी रेट है, तो ओवरऑल सम अप करके हम एक चीज बोल सकते हैं कि आपका फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आपका मतलब एक्टिव हो, और आपके एक्टिविटी के हिसाब से आपको डाइट लेना है, मतलब खाना खाना है उसके हिसाब से। तो ज्यादा भी नहीं करने हैं, कम भी नहीं करने हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस और नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। तो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होने से क्या होता है कि डिफिशिएंसी There is a question, what is Red Bull? तो ये जो रेड बुल होता है वो बेसिकली एनर्जी ड्रिंक जैसा यूज करते हैं, बट इट इज नॉट फॉर एन एथलीट। तो आपके लिए वो इतना अच्छा नहीं है, तो आपको वो यूज करने की जरूरत नहीं है। इट्स एन एनर्जी ड्रिंक, बेसिकली इंस्टेंट एनर्जी के लिए यूज करते हैं उसको।
Are there any more questions? I think that's about it. विलास, आपने पूछना है कुछ? आप बहुत देर से स्माइल कर रहे हैं. No? Okay. I think we have done now. Okay, we are done. Ma'am. Thank you so much for this interactive session and for your sharing your valuable knowledge. Thank you so much. Now, in the last, I also want to thank our chief guest of the day, Simran ma'am. And I would like to thank all the participants who have asked the question and listen patiently. Thank you, everyone. Thank you so much. Now, we are signing off for today, and we will meet you on Tuesday. Thank you, everyone. Stay home, stay safe. So much.